All the student, today we are discuss your important topic endocrine gland or endocrine system. So what is a firstly we are start what is the basic definition of the endocrine system. So let us start, we will be discuss in briefly one by one. So firstly what we know about the gland. So what is the gland? Like an organ which is secrete particular chemical substance for use in our body. So these are a three type of gland in our body, like a endocrine gland, exocrine gland or heterocrine gland. So these are three type of gland in our body. So first one is the exocrine gland. So exocrine gland are the gland that secrete their product into the duct, like a example, for example, sweat gland, salivary gland, somatic and liver, or mammary gland. So these are five gland in the system of exocrine gland. So next one is the endocrine gland. So the endocrine gland, the endocrine system is the made up of glands. So that product are the secreted hormone or chemical substance or product in the body. So that is a regulate the activity of a cell or organ. Like a endocrine gland is a gland, so that is a secrete their product hormone. So directly into the blood rather than through a duct. For example, pituitary gland, pancreas, thyroid gland or adrenal gland. These are the part of endocrine system. So these hormones regulate the body growth, metabolism, like a physically and chemically process of the body. And so these hormones are released into the bloodstream and may affect one or several organ thought of the body. So the major gland of the endocrine gland are the hypothalamus, pituitary gland, and thyroid or parathyroid, adrenaline, and reproductive organ. So next one is the heterocrine gland. सो दीज आर ए ग्लैंड दैट परफॉर्म बोथ फंक्शन. तो अब देखो एंडोक्राइन ग्लैंड में और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है, जो नेक्स्ट वन है हेटेरोक्राइन ग्लैंड, वो दोनों के फंक्शन को परफॉर्म करता है. दीज आर ग्लैंड दैट परफॉर्म बोथ फंक्शन, लाइक एक्सोक्राइन ग्लैंड के और एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन बोथ करेगा. लाइक पैंक्रिया इज आल्सो ए पार्ट ऑफ दिस सिस्टम. So it has a role in the hormone production and as well as in the digestive system. So इसलिए हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोथ फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है. कैसे? जैसे कि पैंक्रिया है, फॉर एग्जांपल पैंक्रिया क्या है, एक तो हार्मोन की प्रोडक्शन भी कर रही है और एज वेल एज आपके खाने को डाइजेशन में भी हेल्प कर रही है. तो इसलिए हेटेरोक्राइन ग्लैंड, दीज आर ग्लैंड आर दैट परफॉर्म द बोथ फंक्शन. So next one is the, firstly we are start about the endocrine system. So consist of a gland and group of the capillary which is a diffusion of the hormones to blood stream. Endocrine system क्या करता है? पहले तो फर्स्ट ऑफ बना होता है ग्लैंड का, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू कौन से ग्लैंड है उसमें, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, पैंक्रिया है, थायराइड है, एड्रेनलिन है. दीज आर ग्लैंड इन दी सिस्टम ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम. सो इनका आप देखो क्या है, एक केमिकल की प्रोडक्शन करता है. कौन से केमिकल की? हार्मोन्स. सो दीज हार्मोन रेगुलेट करते हैं बॉडी की ग्रोथ को मेटाबॉलिज्म में और फिजिकली और केमिकली और डेवलपमेंट में और मेंटेन करने के लिए बॉडी के अदर फंक्शन. सो ये क्या करता है? दीज आर कॉमनली रेफर्ड एज दी ductless gland. So because hormone is secretly direct into the bloodstream. कैसे? The hormone is released into the bloodstream and may affect one or several organ throughout the body. So next one is the endocrine system is consist of number of gland. इसमें क्या है? number of gland present होते हैं. कैसे? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पैंक्रिया एंड थाइमस ग्लैंड. सो दीज आर ग्लैंड, ये ग्लैंड सभी जो प्रेजेंट होते हैं, इनसे मिलके इन ग्लैंड से एक सिस्टम बनता है
दिस सिस्टम इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। देखो अगेन आई विल रिपीट, दी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ग्लैंड, नंबर ऑफ ग्लैंड मिलके कौन से नंबर ऑफ ग्लैंड हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, थैलेमस ग्लैंड, इन सभी ग्लैंड से मिलके एक बनता है सिस्टम। सो उस सिस्टम को क्या बोलते हो, एंडोक्राइन सिस्टम। सो फर्स्ट वन इज दी, अब इनमें ब्रीफली हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, सो दी पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ, किससे बनता है, एड्रीनो हाइपोफिजियोलोसिस के साथ। इससे क्या होगा, हार्मोन्स जो हैं सिक्रीट होंगे, किसमें से, अलग अलग बॉडी के पार्ट से, फ्रॉम दी, जैसे फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस पार्ट से, तो हार्मोन्स विच कम फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस। और सेकंड वन इन न्यूरो हाइपोफिजियोलोसिस, इसमें क्या होगा, तो एक क्या करेगा, न्यूरॉन से विच इज कन्वर्ट हार्मोन डायरेक्टली फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस न्यूक्ली फ्रॉम दी स्टोरेज ऑफ दी पोस्टीरियर लूब। तो उसमें क्या होंगे, वो एक्शन करेगा। देखो हार्मोन कैसे रिलीज होंगे, पहले तो कम फ्रॉम आएंगे किसमें, हाइपोथैलेमस से, और न्यूरो हाइपोफिजियोलोसिस से कैसे आएंगे कि इसमें न्यूरॉन है जो वो विच कन्वर्ट कर देंगे हार्मोन को डायरेक्टली फॉर्म ऑफ हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस में, और स्टोरेज हो जाएंगे किन में, पोस्टीरियर लूब में। और अब देखो पिट्यूटरी हार्मोन में ग्रोथ हार्मोन कैसे काम करेगा, इट इज़ ए नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो ग्रोथ हार्मोन कैसे काम करता है, फर्स्टली एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, फर्स्ट वन इज द स्टिमुलेटिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ बोन, जैसे कि कार्टिलेज को एंड कनेक्टिव टिश्यू को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ को ऑफ बोन की, कार्टिलेज की एंड कनेक्टिव टिश्यू की। और द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन किस में डालेगा, इफेक्ट स्केलेटन ग्रोथ आर दी, मेनली फंक्शन किस पे डालेगा, आपकी बॉडी के स्केलेटन के ऊपर। तो जब बोन की लेंथ बढ़ जाएगी, कनेक्टिव मसल की बढ़ जाएगी, कार्टिलेज की बढ़ जाएगी, तो पर्सन की हाइट इंक्रीज हो जाएगी। तो अब देखो अदर फंक्शन कैसे करेगा, अफेक्ट करेगा प्रोटीन के साथ और मिनरल मेटाबॉलिज्म के साथ। अब देखो एसेंशियल कंपोनेंट है ये। सो ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कैसे करेगा, सो हाइट ग्रोथ हार्मोन इज द प्रोटीन एनाबॉलिक हार्मोन है, ये क्या है, एक प्रोटीन एनाबॉलिक हार्मोन है। तो ऑन द मिनरल मेटाबॉलिज्म में क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। तो डिक्रीज कर देगा सोडियम का, पोटाशियम का, कैल्शियम का। तो क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फेट की एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी। अब देखो जब बॉडी से ये चीज़ें कम निकलेंगी तो इसका मतलब इसकी रीअब्जॉर्प्शनिंग होके फिर मैकेनिज्म एक्शन अपना शो करेंगी ना बॉडी के ऊपर। तो जितनी बॉडी को कैल्शियम मिलेगी, बोन को कैल्शियम मिलेगी, सोडियम मिलेगा, पोटाशियम मिलेगा, फॉस्फेरस मिलेगा, तो उतना क्या है बॉडी को डेवलपमेंट होने में हेल्प मिलेगी। तो दीज आर द मैकेनिज्म एक्शन, आप बोल सकते हो कि दीज आर द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। अगेन आई विल डिस्कस अबाउट द ग्रोथ हार्मोन कैसे करेगा। फर्स्टली जब ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा प्रोटीन और मिनरल की मेटाबॉलिज्म के साथ। प्रोटीन के साथ क्या करेगा, ये इसका एनाबॉलिक हार्मोन है, और मिनरल के साथ क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन फ्रॉम किससे, जीआईटी ट्रैक से, और डिक्रीज कर देगा लेवल ऑफ किसका, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का एक्सक्रीशन फ्रॉम किडनी, बॉडी से बाहर निकलना। देखो किडनी का काम क्या होता है, इंक्रीज द यूरिन, फर्स्टली क्या करेगा, फिल्ट्रेशन करता है, और विद द हेल्प ऑफ यूनिट ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, किडनी का एक यूनिट है जो क्या करता है, फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है और ब्लड को प्यूरिफाइड करने में हेल्प करता है। तो जब प्यूरिफाइड किन में से और करेगा, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम के लेवल को, तो जब होगा क्या कि ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, इनकी जो एक्सक्रीशन है उसको डिक्रीज़ कर देगा, और जब ये बॉडी से वॉश आउट कम होंगे तो इसका मतलब ये अपना एक्शन ज़्यादा शो करेंगे, तो इट कैन बी हेल्प फॉर द ग्रोथ और बॉडी डेवलपमेंट। सो नेक्स्ट वन द इफेक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट मेटाबॉलिज्म। अब कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या करेगा,
तो ये क्या करेगा, इट प्रोडक्ट दी हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया प्रोडक्ट बना लेगा और कार्बन की और फैट की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देगा। ऑन द फैट मेटाबॉलिज्म ग्रोथ हार्मोन हैज़ कैटाबॉलिक इफेक्ट, और इंक्रीज कर देगा किसके, मेटाबॉलिज्म रेट को, फैट फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू से। So how to control the growth hormone? So it release of growth hormone is primarily under the control of two hypothalamic hormone. First one is the growth hormone releasing hormone और growth hormone inhibition. तो हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, इसके रिलीजिंग को, कि कितना ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, कितना रिलीज़ हो रहा है, और अगर ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो उससे कौन से साइड इफ़ेक्ट आएंगे, कौन से कॉज हो जाएंगे, और अगर ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट ही नहीं हो रहा है तो उसके कौन से इफेक्ट आएंगे। तो वी विल बी डिस्कस आर बोथ। सो फर्स्टली सिक्रीशन कैसे होगी, बाय द स्टिमुलेटिंग ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलेटेड ड्यूरिंग द एक्सरसाइज और स्ट्रेस। तो क्या ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन कैसे होगी, ड्यूरिंग जब एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने से क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज़ होगी, लेकिन डिपेंड अपॉन एज। सो ये ग्रोथ हार्मोन जो है डिपेंडेंट एज है। तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे, ड्यूरिंग एक्सरसाइज और एक्सरसाइज लाइक स्टिचिंग एक्सरसाइज और बॉडी वर्कआउट, तो उससे क्या होगा, ये हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन है इसकी सिक्रीशन बढ़ जाएगी। तो व्हेन टाइम जब हम इसकी डिक्रीज़ कैसे होगी, अगर आप सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, सही तरीके से स्लीप नहीं लो करोगे, तो दीज आर द इफेक्ट पड़ेगा कि इसकी जो सिक्रीशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। So thank you. Next lecture we are discuss about the thyroid gland.